ہماری تو حکومت آئی تو ابھی پہلے ہفتے انہوں نے کہا فیل ہو گئی، پر پہلے دوسرے ہفتے میں کہا فیل ہو گئی، یعنی انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا کہ فیل ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایجنڈا تو کچھ اور ہے۔ محنت کش طبقے کو اپنی چھت فراہم کرنے کے وعدے کی تکمیل۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت مزدوروں، بیواؤں اور خصوصی افراد کو مالکانہ حقوق دینے کا باضابطہ افتتاح۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ غریب لوگوں کے لیے گھر بنیں گے، کسی پر احسان نہیں کر رہے۔ حکومت میں آئے تو پہلے دن سے ہی جانے کی پیش گوئیاں شروع کر دی گئی۔ عوام نے ہمیں 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا خطاب۔ Stable Indo-Pakistan relation is a key to unlock the untapped potential of South and Central Asia. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. We have learned from the past to evolve and are willing to move ahead towards a new future. However, all this is contingent upon reciprocity. دونوں ایٹمی طاقتوں کے درمیان تناؤ کی بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ماضی کو دفن کر کے مستقبل کی جانب بڑھیں۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کی طویل جدوجہد کے بعد منزل کے قریب ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب۔ وزیر اعظم عمران خان سے بلوچستان کے لاپتہ افراد سے متعلق 3 رکنی کمیٹی کی ملاقات۔ کمیٹی گزشتہ ماہ دھرنے میں شامل 13 خاندانوں کی نمائندگی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی پرنسپل سیکرٹری کو لاپتہ افراد کی جلد از جلد صورتحال معلوم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی کمیٹی اراکین کو پیش رفت سے آگاہ کرنے کی یقین دہانی۔ ملک بھر میں کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی ویکسین لگوا لی۔ پاکستان میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.5% سے بڑھ گئی۔ بڑے شہروں میں مثبت کیسز کا تناسب 5% سے زائد۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا کورونا SOPs کو نظر انداز کرنے پر تشویش کا اظہار۔ وائرس سے مزید 61 افراد جاں بحق۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر سخت اقدامات کا انتباہ۔ پاکستان اور کویت کے وزرائے خارجہ کے درمیان 1 on 1 اور وفود کی سطح پر مذاکرات۔ توانائی، صحت، ٹیکنالوجی، تعلیم اور دفاع کے شعبے میں تعاون کے فروغ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی حجم میں اضافے کی ضرورت ہے۔ سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات۔ انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے پر تبادلہ خیال۔ کمیٹی سینٹ اور قومی اسمبلی میں پارلیمانی سربراہوں پر مشتمل ہوگی۔ موجودہ انتخابی قوانین اور طریقہ کار کو بدلنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسپیکر اسد کیسر۔ افغانستان میں امن کے لیے ماسکو میں مذاکرات کا انعقاد۔ افغان حکومت، طالبان اور امریکی نمائندہ خصوصی کی شرکت۔ پر امید ہے کہ ان مذاکرات سے انٹرا افغان ڈائیلاگ کی کامیابی کی راہ ہموار ہوگی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت مذاکراتی عمل کی ضرورت ہے۔ عالمی منظرنامے میں تبدیلی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے اس تنازع کا حل ناگزیر ہے۔ سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ۔ بھارتی کسانوں کی احتجاجی تحریک میں شدت۔ 4 ماہ مکمل ہونے پر 26 مارچ کو پورے بھارت میں ہڑتال ہوگی۔ اپوزیشن جماعتیں، تاجر اور مزدور تنظیموں کی جانب سے حمایت۔ کسانوں کا ایک اور ٹریکٹر مارچ کا اعلان۔ پنجاب میں گزشتہ اتوار میں غیر قانونی طور پر 1352 پلاٹ حاصل کرنے والوں سے ریکوری کا فیصلہ۔ ماضی میں LDA میں غیر قانونی پلاٹ کی الاٹمنٹ کی گئی۔ بیواؤں اور مستحقین کے لیے مختص پلاٹ سیاسی شخصیات کو دیے گئے۔ قانون کی عملداری اور شفافیت چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار اور مشیر داخلہ شہزاد اکبر کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ مجاہدوں جہاں کا سبق ہے
मुल्क के वकार, बहादुरी और अज़्म की अलामत 1965 की जंग के हीरो MM आलम की 8वीं बरसी। MM आलम ने 1 मिनट में भारत के 5 तैयारे गिराए, मजमूई तौर पर 9 तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। उन्हें 2 मरतबा सितारा जुर्रत से नवाजा गया। पाक फजाइया का MM आलम को खराज अकीदत। और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका का वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान। टिम्बा बाफुमा क़यादत करेंगे। कौमी टीम 26 मार्च को जोहान्सबर्ग के लिए रवाना होगी। 3 वनडे और 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं समीना राना और खेल की खबरें लिए मैं हूँ आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब ये खबरें तफसील के साथ। नया पाकिस्तान दर हकीकत नई सोच का नाम है, जिसमें मुआशरे के कमजोर तबके को सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तवज्जो का महवर है। इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क में तामीराती शोबे का फरोग और रोजगार की फराहमी हमारी तरजीहात में शामिल है। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि माशरे के कमजोर तबके को ऊपर लाने के लिए हुकूमत के साथ कौम के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम के लिए आसानियां पैदा करे। हुकूमत करती क्या है कि वो फैसिलिटेट करती है, वो मौके देती है आम लोगों के लिए आसानी से घर बना सके, अपने घर खरीद सके। हमने ये पहली दफा किया है पाकिस्तान में कि हमने पहले बैंकों के पास गए, बैंकों को हमने इंसेंटिवाइज किया। 380 अरब रुपया बैंकों को कहा कि सिर्फ घरों के कर्जे के लिए रखें। तो सारे प्राइवेट बैंक ने ये पूरा अमाउंट रखा। स्टेट बैंक इसको मॉनिटर कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि माजी की हुकूमतों ने रिहायशी स्कीमों के नाम पर करप्शन की। हमारी कोशिश है कि मतवसत और तनख्वाहदार तबकों समेत अवाम को अपनी छत की फराहमी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। 25 साल पहले ये सारी जगह ली गई थी हाउसिंग के लिए, मजदूरों के लिए। वर्कर्स वेलफेयर फंड ने ये जगह ली थी, लेकिन वर्कर्स वेलफेयर फंड करप्शन का पलंदा था। इसमें पैसे बनते थे, सब कुछ होता था, लेकिन मजदूरों को कुछ नहीं मिलता था। गवर्नमेंट का एक इरादा था कि हमने ये काम करना है, तो वो 25 साल पुरानी स्कीम को रिवाइव किया गया और आज आपके सामने 2.5 सालों में ये पूरा सारा एक सोसाइटी बन चुकी है और खड़ी हो गई है। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि कब्जा माफिया के खिलाफ मौजूदा हुकूमत बड़े पैमाने पर इकदाम कर रही है। पंजाब में अरबों रुपए मालियत की जमीन वागुजार कराई गई है और कब्जा ग्रुपों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कब्जा ग्रुप हर जगह बड़े बड़े शहरों में, अब ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके कनेक्शंस हैं पॉलिटिशियंस के साथ। जिस तरह लाहौर में एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिला हुआ था पिछली हुकूमत की। पंजाब गवर्नमेंट मेरे ख्याल में 200 अरब रुपए से ज्यादा जमीन अभी छुड़ा चुकी है कब्जा ग्रुप से, और अभी जारी है जहाद। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, जिधर उनका फास्ट ट्रैक होगा, उनके जो भी केस होंगे, हमने फैसला किया वो फास्ट ट्रैक उनके फैसले। वजीर आजम ने कहा कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से जामे मंसूबे लेकर आ रहे हैं और तमाम बड़े शहरों को बाकायदा प्लान के तहत सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मेहनत कश तबके को अपनी छत फराहम करने का वादा पूरा कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत मजदूरों, बेवाओं और खुसूसी अफराद को मालिकाना हुकूक देने का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। रिपोर्ट कर रहे हैं हारून इलाही दूर। 50 लाख घरों की तामीर के वादे पर अमल पैरा वजीर आजम इमरान खान ने घरों की फराहमी में पहली तरजीह मजदूर और मेहनतकश को करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि नई सोच और अवामी खिदमत के जज्बे के तहत नया पाकिस्तान का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। हम जब नया पाकिस्तान कहते हैं, नई सोच का नाम है, एक नए माइंडसेट का नाम है। और नया पाकिस्तान का मतलब एक माशरे को, सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं, एक मुल्क के फैसला करे कि हमने अपने उस तबके को जो कमजोर है, जो जिंदगी की रेस में पीछे रह गया, हमने उसको ऊपर लेके आना है। ये जिम्मेदारी हमारी है सबकी, और गवर्नमेंट सबसे पहले अपने एक्शन से ये साबित करती है कि वो
ایک نئی سوچ لے آئی ہے, ایک نیا طرز حکومت لے آئی ہے. پہلی دفعہ پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ہم نے آسانیاں پیدا کی ہیں. آج پاکستان میں اس کے باوجود کہ کورونا کی وجہ سے ساری دنیا متاثر ہوئی, اگر پاکستان آج بچا ہوا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے, جو کہ آج سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس سے سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے, اور کیونکہ ہماری ایک نوجوان آبادی ہے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روزگار کا ہے. اس سے روزگار بھی ملے گا اور اس سے پھر ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا. وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت کم آمدن اور متوسط طبقے کی فلاح و بہبود پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. عوام کو کورونا کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر اور جامع پالیسی پر عمل پیرا ہے. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے معاون خصوصی ذوالفقار عباس بخاری نے کہا کہ گھروں کی تقسیم کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے. سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ غریب اور محنت کش وزیر اعظم عمران خان کی پالیسیوں کا محور ہے. وزیر اعظم عمران خان نے قرعہ اندازی کے ذریعے خوش نصیب محنت کشوں, بیواؤں اور معذور افراد میں تعمیر شدہ گھر تقسیم کیے. وزیر اعظم صاحب کا یہ ایک خواب تھا کہ غریب اور متوسط طبقے کو مکان بنا کر دینا, اس کی آج ابتدا بھی ہو گئی ہے اور تکمیل بھی ہو گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے ہمیں یاد تو کیا. وزیر اعظم پاکستان کا ایک بہت اچھا قدم ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے. یہ غریبوں کا منصوبہ ہے اور بہت اچھا منصوبہ ہے. اس حکومت نے آ کے ورکروں کا دکھ سمجھا اور اس منصوبے کو بر وقت کمپلیٹ کیا, اور انتہائی خوش ہیں اور ان کو دعائیں دیتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ورکروں کے یہ فلاح بہبود کے لیے جتنا درد رکھتے ہیں وہ خراج تحسین پیش کرتا انہوں نے, اور اسی طرح سے ورکروں کے علاوہ وہ دیگر جو غریب لوگ ہیں جو ان کی بڑی توجہ رہی ہے. ہم ان کے اقدام کو سراہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو مزید دے کہ جس طرح ورکرز کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے مزید کام کر سکیں. آج بیواؤں کی قرعہ اندازی ہے, کل عام ورکر کی قرعہ اندازی ہے. ہم سب کے لیے دعا گوئیں کہ ایسے منصوبے غریبوں کے لیے بنتے رہیں اور خوشحالی آئے. اس سے پہلے وزیر اعظم عمران خان نے نیول انکریج اور گلبرگ گرینز کے پوش علاقوں کے سنگم میں مکمل ہونے والے 1508 رہائشی یونٹس کا افتتاح کیا. وزیر اعظم نے ورکرز ویلفیئر فنڈ کے زیر انتظام مزید گھروں کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا سنگ بنیاد بھی رکھا. منصوبے کے تحت سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت اسی مقام پر مزید 1500 گھر اور فلیٹس تعمیر کرے گی. وزیر اعظم عمران خان نے تعمیر ہونے والے گھروں کا جائزہ لیا اور تعمیراتی کام کو سراہا. ورکرز ویلفیئر فنڈ کے زیر انتظام گھروں اور فلیٹس کی تعمیر کے منصوبے گزشتہ 25 سال سے التوا کا شکار تھے. وزیر اعظم عمران خان نے حکومت سنبھالنے کے بعد ان منصوبوں کو ترجیح دی اور محنت کشوں کے لیے چھت کی فراہمی کا وعدہ پورا کیا. اسلام آباد کے علاوہ ملک کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی ان منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے. ورکرز ویلفیئر فنڈ کے زیر انتظام گھر 23,54,000 اور فلیٹ 21,24,000 روپے میں آسان قسطوں پر فراہم کیے گئے ہیں, جس پر حکومت کی طرف سے 3 لاکھ روپے کی سبسڈی بھی دی گئی ہے. چھت سب کے لیے کے ویژن کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے گھروں کی تعمیر اس کی عملی شکل ہے. ہارون الہی طور, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے. وقت آ گیا ہے کہ ماضی کو دفن کر کے مستقبل کی جانب بڑھا جائے. تفصیل جانتے ہیں رضوان عارف سے. اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ وقت کی اہم ضرورت ہے. آج دنیا کو مختلف طرز کی دہشت گردی کا سامنا ہے. موجودہ حالات میں پاکستان کو بھی کئی چیلنجز درپیش ہیں جن سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ جہت حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. نیشنل سیکیورٹی کو یقینی بنانا صرف افواج کا کام نہیں. نیشنل سیکیورٹی کثیر الجہتی عمل ہے اور اس میں قوم کا اہم کردار ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے اہم کردار کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہمارے عزم کی عکاس ہے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک طویل جدوجہد کے بعد منزل کے قریب ہے. دہشت گردی اور انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی دی جا رہی ہے. Pakistan has been one of the few countries which, despite the rising security challenges, has resisted the temptation of involving itself in an arms race. Our defense expenditure have rather reduced instead of increasing. This is not an easy undertaking, especially once you live in a hostile and unstable
neighborhood. अफगानिस्तान के हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है और खित्ते में अमन के लिए पुरअमन तौर पर मसला कश्मीर का हल जरूरी है। The potential, however, has forever remained hostage to the disputes and issues between two nuclear neighbors. Kashmir dispute is obviously at the heart of this problem. It is important to understand that without the resolution of Kashmir dispute through peaceful means, process of subcontinental rapprochement will always remain susceptible to derailment due to politically motivated bellicosity. It is time to bury the past and move forward. But for resumption of peaceful process or meaningful dialogue, our neighbor will have to create conducive environment, particularly in Indian occupied Kashmir. जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने खिताब में मजीद कहा कि दुनिया ने वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के असरात देखे। हमने माजी से सीखा और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जनूबी एशिया में दुनिया की 1/3 आबादी रहती है। गैर हलशुदा तनाज़ात गुर्बत में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि CPEC इक़्तिसादी तरक्की का एक अहम मंसूबा है। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब करते हुए मामले ख़ुसूसी कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों को दुनिया ने बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत इक़्तिसादी शोबे के हवाले से पॉलिसी पर भी काम कर रही है। In today's post-information revolution world, public relations no longer works for areas of national security. So we've worked with all our other ministries, departments and the military to come up with a whole of government approach and coordinate strategic communication which puts the rightful narrative of Pakistan to the world. As we all know, we've been treated very unfairly, especially by the Western press and media, but partly because all the conversations are driven by the rest of the world about Pakistan and not by Pakistan about ourselves. डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि मुआशी तरक्की के लिए सियासी सफारतकारी में वुसअत भी वक्त की आम जरूरत है। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आलिफ अलवी ने कहा है कि माहीगीरी के शोबे की तरक्की का मकसद ज़र मुबादला और लोगों को रोजगार के मौके देना है जो गैर कानूनी और बिला ज़ाब्ता माहीगीरी की हौसला शिकनी की जाए। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में गहरे पानियों में माहीगीरी की मुजव्वज़ा पॉलिसी पर ब्रीफिंग के मौके पर कही। सदर ममलिकत ने कहा कि वजारत समंदर उमूर मुल्की माहीगीरी के वसाइल को बचाने के लिए इकदाम करे क्योंकि कसरत माहीगीरी से इस शोबे को शदीद खतरात लाहक है। ब्रीफिंग में बताया गया कि गैर मुल्की जहाज़ों पर 2018 से मछली पकड़ने पर पाबंदी आयेगी और मुजव्वज़ा पॉलिसी पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के हवाले से जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक ने इजलास को बताया कि मुल्क की तारीख में पहली बार छोटी और दरमियानी सनतों को जमानत की फराहमी के बगैर बैंकों की जानिब से कारोबार के लिए कर्जों की फराहमी का इंतजाम किया जा रहा है। इजलास को कारोबार में आसानियां फराहम करने के सिलसिले में इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी ने वज़ीर आज़म को बताया कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी ऑर्डिनेंस का इतलाक और मुराद का ऐलान किया जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास को बताया कि मौजूदा हुकूमत शराए नमू और सरमायाकारी के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों के फरोग से मुआशी अमल में तेजी आएगी जिससे मेशत बेहतर होगी और नौजवानों को नौकरियों के बेहतर मौके में असर आएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि साबिक़ा हुकूमतों की जानिब से लिए गए कर्जों की दलदल में फंसे मुल्क को उसी सूरत निकाला जा सकता है जब मुल्क की पैदावार में इजाफा होगा। इस हवाले से हुकूमत कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में राबी अर्बन सिटी और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि राबी सिटी मनसूबा लाहौर शहर के मसाइल के हल के हवाले से करीबी अहमियत का हामिल है। इस मनसूबे से लाहौर समेत पूरे सूबे में मुआशी सरगर्मियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और राबी सिटी मौजूदा हुकूमत के तरजीही मनसूबों में शामिल है और इन पर टाइम लाइन्स के मुताबिक अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। बाद वज़ीर आज़म ने तामीराती शोबे की तरक्की के लिए कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म को तामीराती मंसूबों पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से बलूचिस्तान के लापता अफराद से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इंसानी हुकूक की वफाकी वज़ीर शरीन वज़ारी ने अपने ट्वीट में बताया कि गुज़श्ता माह धरने में शामिल 13 खानदानों की नुमाइंदगी कर रही है। कमेटी वज़ीर आज़म ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लापता अफराद की जल्द अज जल्द सूरत हाल मालूम करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म ने कमेटी अरकान को इस हवाले से पेशरफ्त से आगाह करने की यकीन दहानी कराई। नाज़रीन, शाह बहरीन के भाई और बहरीन के कमांडर नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में मुलाकात की है।
इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान सरमायाकारी, मुआशी, तजारती ताउन को फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में कुवैती वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अहमद नासिर अल सबाह से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों मुल्क मुश्तरका गहरे मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर-ए-आज़म को अमीर कुवैत और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया और पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुख्ता अज़्म का इआदा किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अहमद नासिर अल सबाह ने तालीम, मेशत, तिजारत, सरमायाकारी और अवामी राब्तों में इजाफे और दो तरफा ताउन को मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगान अमन अमल की हिमायत में पाकिस्तान की कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया और तनाज़े के जामे, वसील बुनियाद और जामे सियासी हल की अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा ने तवानाई, सेहत, टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा के शोबों में ताउन के फ़रोग समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद अली। कुवैत के वजीर खारजा शेख डॉक्टर अहमद नसर अल मोहम्मद अल सबा ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से वज़ारत खारजा में मुलाकात की। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी जोग्राफियाई सियासी तरजीहात को जोग्राफियाई मुआशी तरजीहात में तब्दील किया है। पाकिस्तान कुवैत के साथ दो तरफा तिजारत के हुज्जम में इजाफे का ख्वाह है। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान खलीज ताउन कौंसिल के अरकान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए कुवैत के मुस्बत किरदार को तस्लीम करता है। उन्होंने कहा कि हम बैरूनी सरमायाकारों को कारोबार में सरमायाकारी के लिए खसूसी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वजीर खारजा ने कुवैती हम मनसब को मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और इलाकाई अमन को दरपेश खतरात से भी आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अपना मुसालिहाना किरदार खलूस नीयत से अदा करता चला आ रहा है, जिसे आलमी सतह पर सराहा गया है। कुवैत के वजीर खारजा ने पुरतपाक खैर मकदम पर वजीर खारजा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कुवैत पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ का मुतमनी है। कुवैत की तामीर और तरक्की में कुवैत में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी का किरदार काबिल तहसीन है। इससे कबल वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वज़ारत खारजा आमद पर कुवैती वफ्द का खैर मकदम किया। कुवैती वजीर खारजा ने वज़ारत खारजा के सब्ज़ार में यादगारी पौधा भी लगाया। कुवैत के वजीर खारजा के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते हुए दो तरफा ताउन को मजीद तक़वियत हासिल होगी। अमजद अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान ने किसी भी इलाकाई तनाज़े का हिस्सा न बनने का फैसला किया है, सिर्फ इक़्तिसादी खुशहाली में शराकतदार बनेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इस्लामाबाद में जारी दो रोज़ा इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब कर रहे थे। मुख्तलिफ सेशन की कार्रवाई की तफसील जानते हैं राना शहजादुस्सलाम से। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग 2 रोज जारी रहने के बाद खत्म हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हमारी तरजीह जियो पॉलिटिक्स से जियो इकनॉमिक की तरफ है। पाकिस्तान सी पैक से वस्त एशियाई रियासतों को अपनी बंदरगाहों के जरिए समुद्री तिजारत का रास्ता फ्राहम कर सकता है। Enhanced trade, investment, energy security, tourism and people-to-people exchanges are our higher priorities. Our primary interest is in sustaining a peaceful, stable and prosperous world order that takes everyone on board and leaves no one behind. इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में इलाकाई अमन और सलामती के मौजू पर सीनियर सफारतकारों एजाज अहमद चौधरी, जलील अब्बास जिलानी, डॉक्टर अकबर एस अहमद और अमरीकी दानश्वर लॉरेल मिलर ने अपने मकालाजात पेश किए। इंसानी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के उन्वान पर होने वाले सेशन में मुआविन ख़ुसूसी सेनेटर डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास प्रोग्राम मौजूदा हुकूमत का इस हवाले से कलीदी इक़दाम है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान एहसास कफालत और एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए माशी तौर पर महरूम तबके का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। उन्होंने कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क के इंतहाई मुस्तहिक़ शहरियों को एहसास तहफ़्फ़ुज़, एहसास आमदन, एहसास बिलासूद कर्जा समेत मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए माशरे में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह गरीब तबके की बहाली था। उन्होंने कहा कि सेहत हेल्थ कार्ड का इजरा इस जानब अहम पेशरफ्त है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत और मुतलका इदारों की मरबूत हिकमत अमली से पाकिस्तान में कोरोना वबा के मनफी असरात तवक्कुआत से कम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत
صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ معاون خصوصی ملک امین اسلم نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ 10 ملکوں میں پاکستان شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے نیشنل سیکیورٹی پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ملک امین اسلم نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے ایک واضح حکمت عملی مرتب کی جا چکی ہے، جس کے تحت بلین ٹری منصوبے کے تحت درخت لگائے جا رہے ہیں۔ 30 نیشنل پارک میں اضافہ کر کے اب ان کی تعداد 45 کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں کلین انرجی کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے۔ نیکٹا کے سابق کوآرڈینیٹر احسان غنی نے دہشت گردی اور انسداد شدت پسندی کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش کیا۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7.5% سے بڑھ گئی ہے۔ ملک بھر میں قائم خصوصی مراکز میں ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی کورونا ویکسین لگوا لی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں رضوان عارف سے۔ ملک بھر میں کورونا ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے میں 60 سال اور اس سے زائد عمر والوں کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ اس مقصد کے لیے خصوصی مراکز میں کورونا ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوائی۔ قوم سے اپیل کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر SOPs پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ بلوچستان کے گورنر امان اللہ یاسین زئی نے بھی کوئٹہ میں کورونا ویکسین لگوائی۔ اس موقع پر گفتگو میں گورنر نے کہا کہ کورونا وبا کی روک تھام کے لیے مرحلہ وار ویکسین کی فراہمی اور نگرانی کے نظام کو ضلعی سطح پر لے جانے کے لیے کاوشیں ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بزرگ شہریوں کی کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن جاری ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 2 روز کے دوران مجموعی طور پر 3734 معمر شہریوں کو ویکسین دی گئی۔ صوبے میں اب تک 60 سال اور زائد عمر کے 7734 افراد کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین دی جا چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1300 ہیلتھ ورکرز کو ویکسین کی دوسری خوراک دی گئی۔ دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا کے ضوابط کار کو نظر انداز کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC اجلاس میں صوبوں کو کورونا کے حوالے سے جاری کردہ صحت کے مختلف رہنما اصولوں اور ان پر عمل درآمد پر آگاہ کیا گیا۔ NCOC کو آگاہ کیا گیا کہ ہدایات پر عمل درآمد پر جامع جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ فورم کو بتایا گیا کہ بیماری میں تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان نظر آ رہا ہے اور کورونا کے مثبت کیسز کا تناسب 7.5% کو عبور کر چکا ہے۔ تقریباً تمام بڑے شہروں میں مثبت کیسز کا تناسب 5% سے زائد ہے۔ عوام کی جانب سے SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے پر شدید تشویش ظاہر کی گئی۔ فورم نے صوبائی انتظامیہ سے SOPs پر سختی سے عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کو کہا ہے۔ SOPs کے بڑے پیمانے پر خلاف ورزی، ماسک نہ پہننا اور معاشرتی فاصلوں کو نظر انداز کرنے سمیت احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کی بڑے پیمانے پر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ فورم نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ وائرس کے خلاف صحت کے رہنما اصولوں پر عمل درآمد کی عمدہ مثال پیش کریں۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے کے نتیجے میں سخت اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں کووڈ ویکسینیشن مراکز اتوار اور قومی تعطیلات پر بند رہیں گے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ملتان کے مختلف علاقوں میں حکومتی احکامات کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ تفصیل جانیے مرزا فرحان اکرم سے۔ ضلع ملتان میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری۔ شام 6 بجے مارکیٹیں بند نہ کرنے پر کینٹ، بہر گیٹ، دہلی گیٹ اور چوک فوارہ کے علاقوں میں متعدد دکانوں اور شادی ہالز کو سیل کیا گیا، جبکہ 10 دکانداروں کو کورونا ایکٹ اور کار سرکار میں مداخلت کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے عوامی ٹرانسپورٹ میں حکومتی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 23 گاڑیوں کا چالان اور جرمانہ کیا گیا ہے۔ عوامی مقامات پر ماسک پہننے پر سختی سے عمل درآمد کرایا جا رہا ہے۔ تاجر برادری سے، سول سوسائٹی سے، ہمارے جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان سے سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ جو حکومت کی پالیسیز ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اس وائرس سے اپنے معاشرے کی جان چھڑا سکیں۔ حسین آگائی، ممتاز آباد، گلگشت اور چوک کمارا والا پر موجود بیشتر مارکیٹیں حکومتی SOPs کے تحت دکانداروں نے رضاکارانہ طور پر بند کی۔ ہم نے حکومت کے فیصلے کے مطابق دکانیں 6 بجے بند کی ہیں اور تقریباً سارا بازار ہی بند ہو گیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے مارکیٹیں 6 بجے بند ہونی چاہیے۔ ہم اس کے مطابق 6 بجے اپنی دکانیں بند کر رہے ہیں
मेडिकल सर्विसेज, करियाना स्टोर्स, दूध, गोश्त, चिकन की दुकानें, तंदूर, आटा चक्कियां, पेट्रोल पंप, LPG आउटलेट्स और दीगर अवामी जरूरत के तहत खुली रहेंगी। कोरोना वायरस से बचाव के हुकूमती इकदाम अपनी जगह, इस वबा से महफूज रहना है तो मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर को अपनाना होगा। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। नासिर, मुल्क में कोरोना से मजीद 61 अमवात के बाद जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 13,717 हो गई है। कोरोना की नई लहर में मुतासरा अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3,495 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 44,377 अफराद के टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस की नई लहर से हलाकों की तादाद में गैर मामूली इजाफे के बाद बेशतर ममालिक में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में अब तक कोरोना से मुतासर होने वाले 12 करोड़ 20 लाख अफराद में से 26,95,000 लुक़्मा अजल बन चुके हैं, जबकि 9 करोड़ 83 लाख से जायद खुशनसीब सेहतियाब हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर आप तक पहुंचाएं कि चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने पर तबादला ख्याल हुआ है। मुलाकात में फैसला किया गया कि ये कमेटी सेनेट और कौमी असम्बली में पार्लिमानी सरबराहों पर मुश्तमिल होगी। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म के स्पीकर कौमी असम्बली को पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने के लिए खत इरसाल किया था। इस्लामाबाद में विफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन और सेनेटर शिबली फराज से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर असद कैसर ने कहा कि आईनी और इंतखाबी इस्लाहात वक्त की अहम जरूरत है। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत की जाए। नासिर, यौम पाकिस्तान के सिलसिले में मुल्क भर में तैयारियां जारी हैं। मुसलमानान हिंद की जिद्दोजहद को करारदाद पाकिस्तान ने मंजिल का निशान बना दिया। करारदाद पाकिस्तान की मुख्तसर तारीख लाहौर से सादिक बलोच की इस रिपोर्ट में। बरे सगीर पर सदियों हुक्मरानी से अंग्रेज की गुलामी तक मुसलमानान हिंद ने गोरे की रौनत और हिंदू बनिए की मकारी के बुने जाल में कौम के बदहाल माहो साल ही नहीं गुजारे। अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी के लिए हिंदुओं के साथ मुश्तरका जिद्दोजहद में मुसलमान जान गए कि हिंदू अपने राज के ख्वाब देख रहे हैं। यूं जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानान हिंद की नुमाइंदा जमात बनकर उभरी और मुसलमान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुस्लिम रियासत के क़याम के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ़ हो गए। नई रियासत के तस्वर में मुसलमान अपने नज़रियात और अकायद से मुअत्तर इस्लामी रियासत के ख्वाब बुनने लगे। यूं जिद्दोजहद आज़ादी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जलसा लाहौर तक पहुंची, जहां 1940 की करारदाद लाहौर मंजूर हुई, जिसके तारीखी खिताब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, मुसलमान कौमियत की हर तारीफ की रूह से एक अलग कौम की हैसियत रखते हैं, इसलिए ज़रूरत है कि उनका अपना एक कौमी वतन हो जिसमें मुसलमान आज़ाद और खुद मुख्तार कौम की हैसियत से अपने मजहबी और सियासी तसव्वुरात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। बानी पाकिस्तान ने इरशाद फरमाया कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग एक कौम हैं, उनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। यूं करारदाद लाहौर मुसलमाना ने बरे सगीर के लिए ख्वाबों की ताबीर का वो निशान मंजिल बनी जिसे हिंदू ने करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया और अगले 7 सालों में मुसलमानों ने अंग्रेज से आज़ादी और हिंदू से निजात की जिद्दोजहद में कई मनाजिल तय कर डाली। काबिज अंग्रेज और अक्सरियती हिंदू आज़ाद और अलग रियासत के मुसलमानों के नारे, वादे और इरादे को जान गए कि बंगाल से कश्मीर और कश्मीर से पेशावर और हिंदुस्तान के कोने कोने में आज़ाद अलग वतन की गूंज महज ज़मीन के अलग टुकड़े के हसूल की नहीं, बल्कि मुसलमान इस्लामी अकायद और नज़रियात और तर्ज ज़िंदगी की तजर्बागाह के खां हैं। 1940 की करारदाद पाकिस्तान मुसलमाना ने हिंद के लिए निशान मंजिल साबित हुई, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने अगले 7 सालों की जिद्दोजहद के बाद अपने लिए अलग रियासत की बुनियाद रखी। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने आलमी अमन और खित्ते के वसी तर मफाद में मसला कश्मीर को पाकिस्तान भारत मुज़ाकराती अमल के जरिए हल करने की जरूरत पर जोर दिया। बारामूला के इलाके रफ़ीआबाद के दौरे के मौके पर मकामी लोगों से बातचीत करते हुए प्रोफेसर भट्ट ने कहा कि आलमी सतह पर तब्दील शुदा सियासी सूरत हाल की वजह से मसला कश्मीर मरकज से निगाह बन चुका है। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दरीना तनाज़े का हल नागुज़ीर है। जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग, तहरीक वहदत इस्लामी, अब्दुल समद इनकलाबी और आकिब वानी समेत हुर्रियत रहनुमा
रहनुमाओं तंजीमों ने अपने बयानात में मकबूजा वादी खासतौर पर शुपैया में भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर से मुतालिक आलमी करारदादों की खिलाफ वर्जी पर भारत पर मुआशी पाबंदियां आयद करें। भारतीय हुकाम ने मकबूल भट्ट शहीद के छोटे भाई और गैर कानूनी तौर पर नजरबंद रहनुमा ज़हूर अहमद भट्ट पर दूसरी मरतबा काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करके उन्हें मडन सब जेल से जम्मू की भदरवा जेल में मुंतकिल कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के 20 तलबा और आम शहरियों ने वाघा बॉर्डर पर उस वक्त एहतजाजी मुजाहिरा किया जब भारतीय हुकाम ने उन्हें तमाम तर सफरी और कानूनी दस्तावेजात के बावजूद पाकिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया था। कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 मार्च 1940 की तारीखी करारदाद पाकिस्तान गुज़श्ता 7 दहाइयों से जायद अरसे से हक़ खुद इजाज़त के हुसूल की रियासती अवाम की जदोजहद का सचश्मा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत जम्मू कश्मीर के 35 लाख अफराद को अपना वतन पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की जदोजहद की पादाश में आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में बतौर महाजर जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया है। अगली खबर आप तक पहुंचाएं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख ने भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा वादी में लोगों की नस्लकुशी, इमलाक की तबाही और खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों का तशद्दुद को निशाना बनाने की बेईमाना कार्रवाइयों के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया है। इस मौके पर हुर्रियत रहनुमाओं ने कहा कि काबिज भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर के महकूम लोगों की जिंदगी अजीरन बना रखी है और उनके हाथों बेगुनाह लोगों के कत्लेआम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने शुपैया में मुहाजिर तलाशी की नाम निहाद कार्रवाई के दौरान 2 नौजवानों के कत्ल और इमलाक की तबाही की शदीद मजम्मत की। भारत में जालिमाना ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों के एहतजाज को 4 माह होने को हैं, मगर मोदी हुकूमत बदस्तूर अपनी रिवायती हटदर्मी पर कायम है। एहतजाजी तहरीक के 4 माह मुकम्मल होने पर 26 मार्च को पूरे भारत में हड़ताल होगी और मुल्की शटडाउन और पहिया जाम हड़ताल के लिए किसानों ने अपोजिशन की सियासी जमातों और बड़े पैमाने पर ताजरों, मजदूरों और किसान तंजीमों की हिमायत हासिल कर ली है। 26 मार्च की हड़ताल के बाद किसान 28 मार्च को एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान जालिमाना ज़रई कवानीन की कॉपियां नजर आतिश करेंगे। आगे बढ़ते हुए खबर आप तक पहुंचाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पर नजरसानी केस की समाअत की बराह रास्त नशरियात से मुताल्लिक दरखास्त का फैसला महफूज कर लिया है। 10 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि दरखास्त का मुख्तसर फैसला जल्द सुना दिया जाएगा। अपनी दरखास्त पर दलाल देते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वो अपने लिए नहीं बल्कि इदारे की बका के लिए खड़े हैं। सच अवाम के सामने आना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि उन्होंने कल जो दलाइल दिए मीडिया ने उनमें से बहुत कम नशर किए और बहुत कम शाया किए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की रुकनियत के हवाले से अकबर एस बाबर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू दरखास्त गुजार चेयरमैन PTI के वकील अनवर मंसूर खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अकबर एस बाबर की रुकनियत उनकी तरफ से फौरन फंडिंग मामले में शिकायत के इंदराज से कबल मनसूख की जा चुकी थी। अदालत के इस अफ्तार पर उन्होंने अकबर एस बाबर की रुकनियत की मनसूखी के हवाले से दस्तावेजात पेश की। अनवर मंसूर खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किल को फौरन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की तश्कील पर कोई एतराज़ नहीं है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि NHA के मुहासिल में 100% इजाफा किया गया है और खुद एहतसाबी के जरिए 20 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। इस्लामाबाद में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के ज़ेर एहतमाम अपनी गैर मामूली कोशिशों की दादरसी के उन्वान से सालाना तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछाए जा रहे हैं। रवा साल वज़ीर आज़म इमरान खान सवात सियालकोट समेत 7 मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इस साल हमारा जो आगाज हो गया वो 6000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब फर्क देख लीजिएगा, हमने मगरिबी रूट एक ख्वाब था उसको हकीकत में बदल दिया। 2 कुछ लाख के ऊपर आगाज हो गया, M8 के ऊपर आगाज हो गया, होशाब अवारान आगाज हो गया, खुशदार बसीमा आगाज हो गया, हमारा रटोडेरो शिकारपुर आगाज हो गया, हमारा दरा दमखेल प्रोजेक्ट का नसीब आगाज हुआ। इस महीने के आखिर तारीख तक 31 तक उसकी कंप्लीशन भी है। तकरीब से खिताब में IG मोटरवेज सैयद कलीम इमाम ने बताया कि मोटरवे हमसफर ऐप के बाद अब नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस ने मशवरा ऐप मुतारिफ करवाई है, जो मोटरवे पुलिस का एक अहम कारनामा है। सेक्रेटरी मवासलात जफर हसन ने कहा कि मोटरवे पुलिस का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन इदारों में होता है जो अपनी कारकर्दगी के मेयार को कायम रखे हुए है। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे में 1 साल के दौरान बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले अफसरान में अवार्ड तकसीम किए। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
वफाकी वजीर असद उमर की सदारत में रशकई इकनॉमिक जोन पर जारी तरक्याती कामों का जायजा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को बताया गया कि 2000 से जायद सरमायाकारों ने स्पेशल इकनॉमिक जोन में अपने यूनिट्स के क़याम के लिए दरखास्तें दी हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि मुतल्लिका वफाकी एजेंसीज स्पेशल इकनॉमिक जोन को कामयाब बनाने के लिए तमाम जरूरी मुआवनत फराहम करें। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 154 रुपए से 90 पैसे रही। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल जमाल। स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉलर की आमद का असर बराह रास्त रुपए पर पड़ रहा है और रुपए पर दबाव कम होने के बायस इसकी कदर मुसलसल मुस्तहकम हो रही है। आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 1 पैसे की कमी हुई, जबकि डॉलर की कीमत 154 रुपए 90 पैसे रही। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 155 रुपए 1 पैसा रही। रुपए की कदर में इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की कर्जों के हुजम में कमी वाक़ई हुई है और तिजारती और अदायगियों के तवाजुन में बेहतरी देखी जा रही है। पाकिस्तानी करेंसी डे बाई डे अप्रिशिएट करती जा रही है। इसकी बुनियादी बहुत सारी वजूहात हैं। पहले नंबर पर रोशन डिजिटल अकाउंट है जो इसके जरिए पाकिस्तानी बड़ी मिकदार में फॉरेन एक्सचेंज को पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब तक $600 मिलियन से ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में रेमिटेंसेज जो है वो रिकॉर्ड हाई पर चल रही हैं। लगातार 7वें महीने में $2 अरब से ज़्यादा की रेमिटेंसेज आई हैं। फिस्कल ईयर के 7 महीने की रेमिटेंसेज जो है वो हाईएस्ट एवर पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिसका इम्पैक्ट हमारी करेंसी पे खासा पॉजिटिव पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम इस बात की गम्माजी करता है कि समंदर पार पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद कर रहे हैं और गैर कानूनी तरीकों और हुंडी के जरिए रुकूम भेजने की हौसला शिकनी की जा रही है। दूसरी जानिब आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉफिट टेकिंग के बायस इंडेक्स में कमी रही। ताहम आज भी स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हुजम 55 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पंजाब में गुज़श्ता अदवार में गैर कानूनी तौर पर 1352 प्लॉट हासिल करने वालों से रिकवरी की जाएगी। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा कि हुकूमत कानून की अमलदारी और शफ़ाफ़ियत के लिए पुरअज़्म है। तफसील जानते हैं नवीद हयात से। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों ने प्लाटों की बंदरबांट की और बेवाओं और यतीमों के लिए मुख्तस शुदा प्लाट सियासी शख्सियात को गैर कानूनी तौर पर अलॉट किए। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन को इन गैर कानूनी प्लाट्स के अलाटमेंट की तहकीकात की हिदायत कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हम कानून की अमलदारी चाहते हैं और इंसाफ पर मबनी शफाफ निज़ाम के ख्वाहां हैं। जितनी भी अलाटमेंट्स की गई हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर की गई हैं और मेरिट से हट के की गई हैं और जो हमारी हुकूमत का एजेंडा है कि जो इलीगल अलाटमेंट्स या जिस तरह की जो हम मूव चला रहे हैं ये उसका हिस्सा है। हमने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन इशू कर दिए हैं कि जो तमाम इलीगल इस तरह के काम हुए हैं उनके ऊपर एक्शन करे